جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب کی یہ ویڈیو ہے دوستوں، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستوں بڑی امپورٹنٹ بیان ہے یہ، اور بڑا عبرتناک بیان ہے۔ انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے اپنی، کہ اس کی خواہشوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، جسے نفس بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفس پہ کنٹرول، اپنے خواہشوں پہ کنٹرول اگر کر لے تو انشاءاللہ انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن یہ جو خواہشیں ہوتی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں بھی اتنے جھام ہیں، تو کوشش یہی کرنا چاہیے ان سب سے بچے۔ یہ دنیا رنگ برنگی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ امتحان کے لیے آیا ہے انسانیاں، اور اس میں خواہشیں بھی ہیں۔ خواہشیں تو انسان کی رہتی ہیں، لیکن وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے دوستوں یہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مختصر زندگی ہے، اس میں کیا بولتے ہیں ہم کو سارے کام کرنے ہیں، وہ سارے کام ہونے چاہیے اچھے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ چند لمحوں کی یہ زندگی ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں چلے گا دوستوں۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ بیان ہے دوستوں پورا، کہ آدمی جو خواہشوں پر میں بھاگ رہا ہے اس کے لیے یہ بیان بڑا عبرتناک ہے۔ تو آئیے پوری ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکا کرے دوستوں شیئر ضرور کیا کرے۔ ہر اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہے تو میں اس کو 2 بھاگ میں انشاءاللہ بناؤں گا، یعنی کہ 2 پارٹ میں۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، اس کے بعد 5 سیکنڈ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں میرا آئے گا۔ تو آئیے پہلے بنا دیری کے ہم لوگ اس ویڈیو کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہیں، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بفر جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اے لوگوں جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا، خدا پیروں کے نیچے ہوگا، کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، 2 باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم 2 باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان 2 مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کے پجاری ہیں، میں نے اللہ نہیں کہا، اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے۔ میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں ان کو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے، چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम उस वक्त तक पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बना दोगे। हुजूर के कदमों में लाकर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना हो। ये नहीं कि मेरी चाहत तो ऐसी है, मैं ख्वाहिश ऐसी रखता हूँ, लेकिन शरीयत ऐसा कहती है। ये जब टकराव आया तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान आया ही नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन वो है जहाँ दुनिया की सारी ख्वाहिशात वो हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर देता है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ उन नौजवानों से जिनको कुछ नसीहत की जाए तो वो कहते हैं कि मौलाना हमारी लाइफ है, हमें इंजॉय करने दी जाए। कि अभी तो हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को हमें इंजॉय करने दिया जाए। नादान, किसने कहा कि तेरी अपनी लाइफ है? तेरी लाइफ है कहाँ? जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो ख्वाहिशात को ला करके हुजूर के कदमों पर रख देता है तो फिर वो कहता है मेरे अजीजों, वो फिर आकर के ये कहता है अपनी ख्वाहिशात, अपनी तबीयत जहाँ सब मर जाती है आदमी की, उसकी अपनी कुछ नहीं होती, तब उस मोमिन की जुबान से ये निकलता है, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ हुजूर के लिए। उसका अपना कुछ नहीं होता। अपनी ख्वाहिश होगी तो मैं करता रहेगा, और जितनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा दुनिया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ना ही दुनिया उसको कभी सैराब होने देगी, कभी पेट भरने देगी ही नहीं। वो भूखा ही रहेगा, वो प्यासा ही रहेगा जो दुनिया के पीछे भागता है। एक मरतबा सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन बैठे हुए थे, किसी बात का गम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, आपने देखा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा कि गम क्यों है, तो आप खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो आज हम सब के लिए सबक है मेरे अजीजों। फरमाते हैं, ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अपने गम को ज्यादा मत बढ़ा, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। वमा तुरज़क़ यअतिक, जितना अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो आकर रहेगा, वो तेरे पास आ जाएगा। गम कब बढ़ते हैं इंसानों के? हमारे अंदर जो टेंशन जिसको आप कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कह रहे हो, ये सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में कब आती हैं? जब ये अपनी लौ और अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लगाता है। खालिक से अगर लगाता है तो फिर उसके गम नहीं बढ़ते, बल्कि गमों का मदावा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीदें कम कर लो, अल्लाह की ज़ात से यकीन बढ़ा लो, उसकी ज़ात से यकीन बढ़ाओ। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में जिससे हम मिलते रहे, जिससे कुछ ख्वाहिशें रखते रहे, या जिसके मुतालिक कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, या उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मखमूम हो जाता है। अल्लाह की ज़ात से जो वाबस्ता हुआ और वहाँ जो आस लगाया, वो हर दिन बशाशत के साथ जीता है, यकीन के साथ जीता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ जिसने भी अपने ख्वाहिशात को दुनिया के साथ लगाया है उसे कम करना है। ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने गमों को ज़्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहेगा। इस दारे फ़ानी में, इस अमल की दुनिया में हमने अपने बहुत सारी चीज़ें फैला रखी हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कभी कभार मैं देखता हूँ मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है, और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज़्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं, मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीज़न क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है, और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर एक साथ कई चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाती हैं तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है। ये तो मोबाइल है जो तुम्हें सिखा रहा है। यही चीज़ है दुनिया के हमारे इस लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर दिमाग में आ जाती हैं तो फिर दिमाग गर्म भी हो जाता है और स्टक भी होता है, हर चीज़ सोचने से भी आरी हो जाता है, सही तरीके के फैसले नहीं ले पाता। अच्छा, नुकसान क्या है इसका? सेम हमने मोबाइल एक्सपर्ट से भी पूछा, जब मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे या स्टक होने लगे तो इसको क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके रेडिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं उस वक्त, और ये नुकसान पहुँचा सकता है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसके दिमाग पर भी असर करेगा, आसपास के लोगों पर भी असर करेगा। एक मोबाइल के ऊपर अगर ज़्यादा लोड आ जाए तो उसके रेडिएशन आसपास सबको ख़राब करते हैं। यही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। तुम्हारे दिमाग के ऊपर अगर गम ज़्यादा आप बैठ गए और बहुत ज़्यादा दिमाग हावी हो गया तो खुद का तो नुकसान करोगे ही, आसपास जितने हैं सबका नुकसान करोगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप भी परेशान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चे सब इस पे हाल, इन सब चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? कहा गया मोबाइल को ऑफ कर दो, डाटा कम कर दो, इसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट कर दो, फिर ये अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगा। सेम आपके लिए भी है, दिमाग में दुनिया के बहुत सारे फितूर भरे हो तो थोड़ी चीज़ें डिलीट कर दो, थोड़े दिनों के लिए अपनी इस एक्टिव लाइफ को रोक दो और आ जाओ अल्लाह की बारगाह में और आंख बंद करके उसकी तरफ लौ लगाओ। इसलिए कि हमारी बैटरी जो चार्ज होगी वो खालिक कायनात से ही होगी, बनाने वाला ही बेहतर जानता है इसकी ज़िंदगी किस चीज़ से चलती है। और इसीलिए कहा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से कई दिन तक गाफिल होता है तो मुर्दा लाश है जो चल रहा है, बाजारों में जो चल फिर रहा है, ज़िक्र इलाही नहीं करता तो इसकी रूह ख़त्म होने के करीब आई है, ये जिंदा लाश है।
यहाँ ज़माने हो गए, महीनों बीत गए, बरसों हो जाते हैं, कितने दिन ऐसे हैं आपने अल्लाह के जिक्र के लिए अलग से वक्त निकाला हो? कहाँ है वक्त? नमाज भी ऐसे पढ़ करके भाग जाते हैं जैसे लगता है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर सवार थी, जल्दी से हटा दी और भाग गया। नहीं मेरे अजीज़ों, हमारी रूह जब बीमार होती है, हमारी रूह को जब भूख लगती है, तो अल्लाह के जिक्र से इसका इलाज भी होता है और इसको रिस्क भी मिलता है। लेकिन हम रिस्क देते ही नहीं। कभी आपने देखा हमारी बॉडी को, सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर में खाना ना खाओ, तो शाम तक हमारा जिस्म हिचकोले लेने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? जिस्म 2 वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की जरूरत है। और रूह का रिस्क क्या है? रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमजोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी औक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैला ली हैं, इतने सारे, जिसकी वजह से गमों का बोझ हमारे दिमाग पर तारी है। और एक वक्त वो आएगा जब सारी चीज़ें छोड़ करके फ़ौरन भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के मुतालिक कहा गया है कि रूह निकलने के वक्त उसको बहुत तकलीफ होती है, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रूह निकलने के वक्त दर्द ज़्यादा होता है, तकलीफ ज़्यादा होती है मरने के वक्त। पूछा गया क्यों? कहा कि ये रूह जो है उसकी सारी बनाई हुई चीज़ों में अटकी हुई है, उसकी औलाद में भी है, उसके माल में भी लगी हुई है, उसके घर में भी लगी हुई है, उसके जायदाद में भी लगी हुई है। रूह जब निकल रही होती है उन सब चीज़ों से भी निकल रही है। जहाँ जहाँ इसकी ख्वाहिशात लगी हुई थी सब जगह से खींचा जा रहा है, तो दर्द बढ़ता चला जाता है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और फिर वो जब देख रहा होता है खाली हाथ जा रहा हो, तकलीफ ज़्यादा होती है। इसीलिए मेरे अजीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर ने अपनी बीवियों को बुलाया, अज़वाज मुतहरात को बुलाया और पूछा कि किसके किसके पास कितना सोना है, कितना जेवर है। अज़वाज मुतहरात ने कहा मेरे पास इतना है, इनके पास इतना है। सब ने अपने चांदी सोने के जेवरात लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी अज़वाज, अगर तुम चाहो तो ये सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, अल्लाह की राह में इसको वक्त कर दो, खैरात कर दो। बीवियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से सोना चांदी पहनना हराम हो गया है? क्या हमारे लिए नाजायज़ हो गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ज़ीनत तो तुम्हारे लिए है, सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस हाल में दुनिया से जाऊँ कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फ़कीर उठाया जाओ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊँ कि मेरे घर में कोई चीज़ रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, माल और दौलत। क्योंकि मेरे अजीज़ों, इसी से अंदाज़ा करो इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उम्रा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था, एयरपोर्ट पर पहुँचे, बहुत ताख़ीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास। और हमारा बार बार जाना आना होता है, मैं कभी कोई ज़्यादा चीज़ें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ़्लाइट जहाँ चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज़्यादा का अलाउड नहीं है। और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है और क्या ले जा सकते हैं हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था, कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई कहता है नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था, इसको ले लेता हूँ। वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त तो 4 चीज़ें लेकर के निकल रहे थे और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफ़र पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफ़र मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को। और फिर अंदर आकर जब बैठे, मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहाँ से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है। रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था और भी कुछ चीज़ें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे। किस चीज़ की नसीहत करूँ, किस चीज़ की वसीयत करूँ। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहाँ रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मलकुल मौत रूह निकाल कर निकल पड़ती। ये इंसान की शॉर्ट लाइफ है, मुख्तसर सी जिंदगी है जहाँ ये ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती हैं। इसीलिए शेख सादी ने बहुत अच्छी बात फरमाई। एक बादशाह ने ऐलान किया था अपने वजीरों में से एक को, उससे बहुत खुश हुआ और कहा जा आज तुझे मैं इतनी जायदाद दूंगा, इतनी ज़मीन, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा जितना तू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घेर देगा, जितनी ज़मीन तू घेरेगा उतनी तेरे नाम लिख दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सुबह ये लकड़ी लेकर तू राउंड मारना और इतना गोल सर्कल बनाना सूरज डूबने से पहले पहले तक, जितनी ज़मीन घेर लेगा वो पूरी तेरे नाम पर। उसने सोचा कि इतनी बड़ी ज़मीन मैं घेर सकता हूँ एक पूरे दिन। मियाँ मुंबई वाले अच्छी तरह जानते हैं,
4x4 की जगह मिल जाए तो यहाँ कितनी बड़ी गनीमत होती। और उस बंदे को बादशाह ने कहा लकड़ी हाथ में ले ले और लकीर खींच, शाम होने से पहले जितना करेगा पूरा तेरे नाम पर। वो निकला और जब लकीर खींचते खींचते जब चलने लगा, पीछे मुड़ के देखता तो बहुत लंबी हो गई है, इतनी जमीन मेरे नाम पर होने वाली है। दोपहर हो गई, वो वापस आना नहीं चाह रहा है, वापस आकर के सर्कल पे खत्म तो करना है जहां से शुरू किया था। सोचता और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा करते करते वो असर हो गई उसकी। अब उसको लगा कि वापस पलटना चाहिए। कई किलोमीटर हो गए थे, इतने किलोमीटर की जमीन अब वो अपने नाम पर करवाने वाला था। लेकिन जब वापस पलटने का वक्त आया, सांस फूलने लग गई, क्योंकि सुबह से चल रहा है, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है, जिस चीज को जमा करने के लिए दौड़ता रहा। अब सूरज पीला पड़ गया, डूबने के वक्त करीब आने लगा तो अब भागना शुरू किया। बादशाह और उसके वजीर इंतजार कर रहे थे कि ये लौटेगा भी। अब देखा बड़ी दूर से ये दौड़ता दौड़ता आ रहा है अपनी लकीर जमीन पर खींचते हुए कि जल्द से जल्द अपने उस पॉइंट पर पहुंच जाऊं जहां से शुरू किया था। सांस फूलने लग गई, दौड़ते दौड़ते हाँफने लग गया। सूरज डूबने के करीब आ गया, आखिरी किरणें बाकी थी और इसका पॉइंट भी करीब आ गया था। दौड़ते दौड़ते किसी तरह सूरज गुरूब होने से पहले पहुंच गया वहां पर, लेकिन कसरत से भागने की वजह से ठोकर खा करके गिर गया और अपने उस पॉइंट पर लकड़ी ला करके जमा कर दिया। बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ी लकीर खींचा था, लेकिन ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं सका। जब सिपाही उठाने को आए तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा, ख्वाहिशों के पीछे आदमी भागता है। उसको ये नहीं पता कि जब मरेगा वो को उसको क्या दो का ज़मीन मिलेगी। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, जो मिसाल दी गई कि एक आदमी लालच में पूरा दिन निकल पड़ा बस निशान डालने के लिए, जितनी जगह वो निशान डाल सकेगा पूरी जगह उसकी हो जाएगी। और उसका अंजाम क्या हुआ दोस्तों? भूखा प्यासा बस चलते 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 वापसी में जब उसने लौटा तो दौड़ते दौड़ते आया और ठोकर लगी और उसी जगह जाके वो गिरा जहाँ पे उसने निशान लगाया था और वो मर गया। तो अक्लमंद बादशाह था, उसने क्या कहा, यहीं पे इसकी कब्र बना दो। तो देखा आपने दोस्तों, ये होता है ख्वाहिश। तो ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं। आपको अपनी ख्वाहिशों पर अपने कंट्रोल रखना है। अपनी असल ज़िंदगी जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजी है अपनी इबादत के लिए, वो इबादत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, ताकि दोनों जहां में आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिले। और अपनी आखिरत आपको खुद बनानी है, कोई दूसरा आपकी आखिरत नहीं बनाएगा। तो ये जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, इसको सही रास्ते पे खर्च करें। और अल्लाह ताला को जवानी की इबादत सबसे ज़्यादा कबूल है। तो कोशिश करें, अल्लाह की बात मानें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के बताए हुए सारे काम करें, जिससे अल्लाह राज़ी होगा। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ सेकंड पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ये इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए। जो भी हज़रात अक्सर सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।